ओके बेटा क्वाड्रिलेटरल इफ यू हैव एनी डाउट्स है ना आप ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं, आई विल टेक दैट क्वेश्चंस और अदरवाइज विल टेक इट फ्रॉम आवर साइड। सो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम सबसे पहले ले रहे हैं। सो हेल्प मी आउट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? Sir, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Okay, what else? The opposite sides Sir, are equal. Opposite sides are equal. sir, adjacent angles sum up to 180. Adjacent angles are supplementary. And sir, opposite angles are also equal. Opposite angles are equal. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Very good. Okay. A parallelogram in which angles become equal, that parallelogram is called Rectangle. rectangle. A parallelogram in which side becomes equal? Square. Square. No. Rhombus. Rhombus. A parallelogram in which sides and angles are equal? Square. Square. Okay. Question is which minimum okay, define parallelogram. So we say that a quadrilateral is a parallelogram if, हाँ जी कौन कर रहा है complete statement को? Raise your hand. A quadrilateral is a parallelogram if, raise your hand. हाँ जी तन्वी बोले. If one pair of sides is equal and parallel. Okay. Actual definition is जो official definition है ना, that is a quadrilateral is parallelogram if opposite sides are parallel. This is official definition. 1 minute beta. हाँ जी. So official definition is a quadrilateral is a parallelogram if opposite sides are parallel. है ना? This is how parallelogram is defined. Rest all can come as a question. Question क्या होगा? Prove that if one pair of opposite side is parallel and equal, then it is a parallelogram. So अगर आपको given है कि one pair of side जो है बेटा वो equal और parallel है, तो हमें प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम है. दैट मींस यू हैव टू प्रूव दैट द अदर पेयर इज आल्सो पैरेलल. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. दिस कम्स एज अ क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ व्हाटएवर वी विल बी राइटिंग डाउन एनीवेयर, अगर दूसरे जो प्रूविंग क्वेश्चंस है अगर उसमें कभी भी आता है तो देयर यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, therefore it is a parallelogram. This can be used as a theorem and this can come as a theorem to prove also. ठीक है? So this is your official definition. Plus इसके base पर what other properties we can prove is that if one pair of opposite side is equal and parallel, then it is a parallelogram. Okay, what else?
and your quadrilateral is a parallelogram if The diagonals bisect each other. impressive. किसी भी quadrilateral में अगर क्वेश्चन में गिवन है that diagonals bisect each other, then that figure is a parallelogram. The opposite angles are equal. Opposite angles are equal. What else? Sir, adjacent angles are 180 degrees. All pair of adjacent angles are supplementary. What else? One important. Anyone? Opposite sides are equal. A quadrilateral with opposite sides equal is a parallelogram. So अगर मैं आपको बेटा ऐसे दे रहा हूँ, I am saying this is 5 centimeter, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter, this is 4 centimeter. Forget about what diagram I have drawn. This figure is a parallelogram. ठीक है, understood? Sir, but what about the sides? They are not parallel. Sir, the other properties are unsatisfied. नहीं बेटा, मैंने फिगर जो है वो टू द स्केल ड्रॉ नहीं की है. Okay, sir. बट अपोजिट साइड्स अगर मैंने आपको इक्वल दे दिए हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. है ना? Okay, sir. तो आपके एग्जाम में ये अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है. लाइक दिस विल बी अ क्वेश्चन. प्रूव दैट इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम. इसको प्रूव करने के लिए यू विल यूज दिस वन. दैट इज यू विल प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसको प्रूव करने के लिए, इन सबको प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा अपोजिट साइड पैरेलल है ना? Then only you are able to prove that it's a parallelogram. Right? Yes, sir. Okay. So this question, let's say if opposite sides are equal. So basically this figure is here given opposite sides are equal. You know, this is your given. Given is ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral with AB equals to CD and BC equals to AD. उसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइन AC है ना? किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट है बेटा, है ना? डायग्राम इज मस्ट. आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है डायग्राम तो भी आंसर शीट में आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है. विदाउट ड्रॉइंग डायग्राम यू विल नॉट गेट मार्क्स. ठीक है? प्रूफ कैसे करेंगे एनीवन? Sir, congruency. हाँ जी, टू प्रूव. ठीक है, दिस आई एम राइटिंग डाउन. ये देखो 4 स्टेप्स हैं आपके. ठीक है, दैट इज गिवन. टू प्रूव पहले आता है, फिर कंस्ट्रक्शन आता है आपका. सो ठीक है, to prove is A, B, C, D is parallelogram. I will not go in detail in each question, and I'm just telling you in this question.
ठीक है. सो जॉइन AC, देन कम्स योर प्रूफ. ठीक है. इस पूरे तामझाम में ना जो सबसे गलत चीज हो रही है दैट इज ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आ पा रहा है. क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि मेरा डायग्राम लेफ्ट में है और प्रूफ मैं राइट में कर रहा हूँ. सो ऑलवेज इट हैज टू बी अपोजिट. अपोजिट इन अ सेंस कि वट एवर यू आर राइटिंग should go on your left side and diagram should be on the right side. है ना. इसमें जो बेटर चीज है दैट इज कि आपका जो कंस्ट्रक्शन टू प्रूव है ऑल दिस थिंग्स गेट्स इनटू वन लाइन. ठीक है. देन कम्स योर प्रूफ. ठीक है. प्रूफ में you will say that these two triangles are congruent, so you will say in triangle ABC and triangle ADC. ADC नहीं होगा बेटा, CDA. ठीक है. ओ ये ऑर्डर में है. हाँ जी. सो इन दोनों ट्राइंगल में यू विल से दैट AB equals to CD and AD equals to BC. This is given. AC is equal to AC common. 1 minute बेटा. Then AC equals to AC. This is common. SSS. हाँ जी. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA by SSS. ठीक है. क्योंकि triangles congruent है, then you will say that this angle is equals to this angle. ठीक है. These two angles are alternate interior angle. Therefore, this line is parallel to this line. Also, this angle is equals to this angle. है ना. Corresponding parts of congruent triangle. Therefore, these are alternate interior angle. This side is parallel to this side. As opposite sides are parallel, thus the triangles are congruent to each other. ठीक है जी. Agreed? Yes, sir. Okay. Two parallel lines are intersected by a transversal. Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angle is a rectangle. Two parallel lines are intersected by a transversal. You have to show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles. ठीक है. इन इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होंगे, कौन से एंगल बाइसेक्टर. सो इनको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इससे जो डायग्राम फॉर्म होगा दैट डायग्राम विल बी अ रेक्टेंगल. ठीक है. रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो सिंपल है, पैरेललोग्राम विद वन एंगल. ठीक है. विद वन एंगल 90 डिग्री. 90 degree. Yes. और क्या होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज? एनीवन? कौन सी फिगर रेक्टेंगल होती है? Sir, opposite Opposite sides sides are are equal Sir, and opposite parallel. sides are equal and parallel. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये तो पैरेललोग्राम होता है. Sir, all angles are 90 degree. All angles are 90 degrees. All angles equals to 90 degrees. ठीक है. Sir, This is a opposite rectangle. angles are equal. अरे all angle 90 डिग्री का मतलब सारे एंगल इक्वल हो गए ना. Yes. sir. Yes, sir. और अगर डायगोनल्स आर इक्वल In length. एंड बाइसेक्टर, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, खाली बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ पैरेललोग्राम. Parallel. अगर इक्वल भी है देन इट्स अ रेक्टेंगल. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वी आर गेटिंग दिस इज योर x, देन दिस इज योर x. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज x, दिस इज x. ये क्लियर है आपको? Yes. पैरेलल लाइंस हैं तो दिस एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. है ना. सेम वे में इफ दिस इज y, दिस इज y, if this is y, this is y. Bye. Right? So can you tell me what is 2x plus 2y? Sir, 180 Sir, degree. 180. 180. So what is x plus y? 90 degree. 90 degree. 90 degrees.
this also is 90 degrees. Yes. ठीक है, and x plus y जो है होगा 90 है, तो in this triangle Sir, that angle is also 90 degrees. this angle is also 90 degrees, and this angle, this is also 90 degrees. Yes. All angles are 90, thus it is a rectangle. 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 Show that the bisectors of angles of a parallelogram, when intersect each other, they form a rectangle. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसके सारे एंगल्स को हमने बाइसेक्ट किया है, एंगल बाइसेक्ट किया है. देखो पैरेललोग्राम है, पहले उस चीज को यूज करो. पैरेललोग्राम है तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना. पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. अब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. प्रेजेंटेशन में भी आप यही बोल के चलें. प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे आप जब प्रूफ लिख रहे हैं? यू विल से लेट एंगल B equals to angle D is equals to 2x and angle A equals to angle C is equals to 2y. ठीक है, so it becomes easier to present it, है ना. अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो this also is y, this is y. जो हमारे एंगल्स हैं ये adjacent angles are So supplementary. supplementary, है ना. so इसका मतलब है x plus y कितना हो गया? 90. 90. अगर x plus y 90 है तो ट्राइंगल में रिमेनिंग पार्ट दिस Sir, इज angle P 90 है. Yes. दिस रिमेनिंग पार्ट दिस इज 90. यहाँ तक देखें, समझ में आया सबको? Yes, sir. ये वैसे भी रिवीजन हो रही है बेटा, कहीं पर कुछ भी डाउट हो, ठीक है, प्लीज डू आस्क. अगर मैं आप लोगों के बेसिक मैथ्स ले सकता हूँ 5th 6th 7th की, तो आई डोंट हेजिटेट इन आंसरिंग एनी क्वेश्चन एंड यू शुड नॉट हेजिटेट इन आस्किंग एनी क्वेश्चन. छोटे से छोटा डाउट भी डोंट टेक इट कि मैं बाद में इंटरनेट में देख लूंगा या फिर ये आई चेक आउट, है ना, अदर्स विल लाफ. नो 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 नो. ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि नो वन नोज ईच अदर, है ना. आप लोग एक दूसरे को तो जानते ही नहीं है, सो लाफिंग वाली बात ही अलग है. ठीक है, सो डू आस्क, बस पूछना है जरूर क्वेश्चन. ठीक है, जरूरत पड़ेगी हम क्लास थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, बट ईच डाउट शुड बी आंसर्ड. प्लस इंडिविजुअल सेशंस अवेलेबल है. You can take 1-to-1 class on Tuesdays and Saturdays. Okay, same goes here. यहाँ पर हमारे पास ये x है, ये y है ना. So this angle becomes 90. ये 90 है तो ये 90 हो गया. And thus this quadrilateral has all angles 90 degree and it is a rectangle. Check कर लें, है ना. Few questions I am solving from my side first and then we'll keep an interactive session. I'll ask you to solve. थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आने दो, ये तो इजी चल रहे हैं. डन. Yes, sir. ओके, डू यू नीड दिस? आपको चाहिए ये पीपीटीज बेटा? मैं आपको ना पीपीटी का पीडीएफ बनाकर पोस्ट कर देता है ना, तो आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं ना. चलो जी, ओके. ABCD is a parallelogram in which PQ are the midpoints. If AQ intersects DP at S and Q at R, show that PSQR. आपको शो करना है PSQR is a parallelogram. चलो जी, थोड़ी देर है ना, 1 minute, go through it. हमें ये गिवन है बेटा, ये मिड पॉइंट्स हैं and original is your parallelogram. You have to prove PSQR is a parallelogram. $30 seconds, think on it, and then raise your hand if you have decoded, and we'll discuss. AQ, BQ, CP और DP एंगल बाइसेक्टर है क्या? नहीं, सिर्फ गिवन है P and Q are
मिड पॉइंट, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है. एंड ABCD is a parallelogram. These two things are given. सर कर लिया फिगर आउट. Very good, Shaurya. Just 1 minute I'll ask, you know. Okay, Shaurya बताओ. सर ये ट्रायंगल ले लेंगे DPS, इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे. सर SQ, सर फिर STP का मिड पॉइंट हो जाएगा और SQ पैरेलल टू PS हो पहला जाएगा. ट्रायंगल कौन सा लिया आपने बेटा? सर DPC. DPC. सर इसमें फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है बताओ मुझे. सर उसमें थर्ड साइड से सिर्फ पैरेलल होती है. हाँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि If- अगर आप फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन ट्रायंगल वन साइड यू ड्रॉ पैरेलल टू द सेकंड साइड, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. यहाँ पे कौन सी कन्वर्स लग रही है? ये पैरेलल है, ये तो गिवन ही नहीं है, ये तो प्रूव करना है आपको पैरेलल है. समझ गए? Okay, sir. I'll reduce it down to a shorter part. Everyone prove that these two lines are parallel. सर वाह ये पैरेललोग्राम हो जाएगा APQS. Opposite sides are equal and parallel. PQS These- कौन सा है भाई? सर सर यहाँ ये पर जो AP और QC भी इक्वल होगा इससे तो इसलिए हाँ. सर ये APQS पैरेललोग्राम बन जाएगा ना. तो So फिर you will get 1 minute, है ना? This is a parallelogram. Why this is a parallelogram? क्योंकि opposite sides are parallel to each other. क्योंकि original sides parallel थी. Opposite sides are also equal because they each are half of equal lengths, है ना? तो अगर opposite sides equal and parallel हैं तो पूरी figure parallelogram है. ठीक है? So यहाँ पर हमारा first step जो है we are proving that P, आप भी सब ना ये ऐसे करके नोट कर सकते हैं हर प्रूविंग में ना, जैसे APCQ ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इज पैरेललोग्राम. दिस इज आई एम प्रूविंग. सेकंड स्टेप में आई एम गेटिंग दैट AQ इज पैरेलल टू PC. थर्ड स्टेप में आई एम प्रूविंग दैट PBQD, ठीक है, PBQD इज अ पैरेललोग्राम, ये वाला है ना. सेम लॉजिक में, सेम लॉजिक क्या होगा, क्योंकि अपोजिट पेयर्स आर इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, तो फुल फिगर इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम. थर्ड स्टेप में यू विल प्रूव दैट योर PP and QB are parallel. हाँ जी, दैट इज DP and DP is parallel to BQ, or you will say SP is parallel to QR. QR. A part of it is also parallel, है ना. यहाँ पर हमारे पास आया था SQ is parallel to PR, ठीक है. और इन दोनों को मिलाकर फिफ्थ फ्रॉम 2 and 4, ठीक है, SPRQ is parallelogram. Yes. ठीक है. दिस इज जस्ट अ समरी कि आपको कैसे प्रूव करना है. राइटिंग जॉब यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ, है ना. आपको बुकलेट्स में भी मिल जाएगा प्रॉपर्ली रिटन डाउन, बट ये स्टेप्स अगर आपको मालूम है तो यू विल नॉट डिफॉल्ट. ठीक है शौर्य, क्लियर है आपको बेटा? Yes, sir. Wait, do you want me to post it on the group or recording will do? सर ये NCERT में I think क्वेश्चन है. है ना, आप लोग कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग से आप नोट कर लेना खुद, है ना.
और जरूरत लगे तो आप उसमें से फिर स्नैपशॉट करके खरीदें, है ना। कंप्यूटर में बेटा एक सर्च में जाएंगे, आप स्नीपिंग टूल टाइप करें। स्नीपिंग टूल से स्क्रीन पर आपके जो भी चीजें हैं आप उसको कट पेस्ट कर सकते हैं, है ना। स्नीपिंग टूल को आप टास्क बार पे पिन कर लें, नीचे जो बार है उस पर पिन करेंगे तो दैट्स इट। क्लास चल रही है, इन बिटवीन आपको कुछ चीज कॉपी करनी है, स्नीपिंग टूल को कट करें, वर्ड फाइल में वो चीज पेस्ट करते रहें। स्नीपिंग टूल इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली, वेरी हैंडी। इनफैक्ट स्नीपिंग टूल में आप कुछ स्निप करके and then you can erase a part of it, you can add something from your side, and then you can do copy paste on word file and अपनी chapter wise word file आप बना सकते हैं उसमें। और सिंपली आप तो विंडो शिफ्ट एस भी दबा सकते हैं। Yes, sir. विंडो शिफ्ट स्क्रीनशॉट विंडोज शिफ्ट एस, वो स्क्रीनशॉट लेके आपको उसमें क्रॉप करने को option देगा। स्क्रीनशॉट होती है ना, और स्क्रीनशॉट करके फिर आप उसको क्रॉप करेंगे तो बेसिकली उसमें आप कुछ अमेंड नहीं कर सकते। आप एक बार अगर स्नीपिंग टूल यूज करेंगे then you will use only ये that, स्नैपिंग है टूल ना। का शॉर्टकट है। स्नीपिंग टूल का ही शॉर्टकट है ये। यस सर। एक बार बताओ, मैं ट्राई करता हूँ। विंडो, अगर आप दबाओगे तो ऊपर हाँ, टूल्स आ वो जाएंगे। शिफ्ट और एस। विंडो शिफ्ट एंड एस, यस सर। विंडो शिफ्ट एंड एस। okay, this is snipping tool but facilities यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, ओके, सेम थिंग ओनली। थैंक यू। Sir, there is even easier way, sir. You can press Windows plus print screen button. प्रिंट स्क्रीन आई डोंट लाइक टू यूज। okay, in a parallelogram ABCD, point P and Q are taken on the diagonal BD. P and Q are taken on the diagonal BD such that DP equals to BQ। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है हमारी। You have to show that ABCQ is a parallelogram। क्वेश्चन क्लियर है? थिंक ऑन इट, जिसको आ जाए तो प्लीज बता देना मुझे। Sir, I think I can. हाँ बताओ। Sir, first we will prove triangle QBC and PDA as congruent. Sir, then triangle एक मिनट, PDC. विच ट्रायंगल? Sir, QBC and PDA. QBC, he is going to prove QBC and PDA as congruent by, Sir, then एक मिनट, by SCS, है ना। this side is equals to this side, parallelogram के opposite sides, this angle is equals to this angle and third side is given equal। so क्योंकि ये yes, sir. congruent है इसीलिए third side will be congruent, है ना। this side is equals to this side। same way he is going to prove these two triangles are congruent, है ना। यही करने वाले ना आप। Yes, sir. और उससे जो है you will get the remaining two side, this is equals to this, है ना। so then he will use, because the opposite sides are equal, thus quadrilateral APCQ is a parallelogram। so steps he is following is, number one is triangle BQC is congruent to triangle BQC is congruent to triangle DPA। number two, because of that QC is equals to AP। number three, similarly AQ is equals to PC। number four, APCQ is parallelogram। okay, any other way, anyone? okay, let me ask you something। ठीक है ना, अगर मैं AC को ज्वाइन कर दूं
and let's say they are meeting at O. Agreed? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Number 1 is join AC. Number 2 is AO equals to OC. ठीक है ना? Diagonals bisect each other. Yes, sir. Number 3 is BO equals to OD. Number from here I am getting QO equals to OP. OP. ठीक है? Number 4 from 2 and 3 diagonals of APCQ bisect. Number 5 APCQ is a parallelogram. ठीक है जी, agreed? Yes, sir. 2 ways we have proved this. देख लें आप, screenshot ले लें. We'll move to next question. स्कूल के एग्जाम्स कब हैं टर्म 2 के? कुछ मैसेज है स्कूल की तरफ से? सर बोला था कि फेब में होंगे। कैसे हैं सर? अभी ले रहे हैं सर, सेम सिलेबस का टेस्ट एक हफ्ते बाद से। सेम सिलेबस का मतलब टर्म 1 का? सर जो टर्म 2 में आ रहा है। अच्छा, फाइनल टेस्ट है एक हफ्ते बाद? नो सर, सर फाइनल भी होगा। इस सेम सिलेबस के 3 टेस्ट ले रहे हैं सर, पता नहीं क्यों। एक अभी, एक अगले महीने और फिर एक और अगले महीने। ठीक है। ओके, ABCD is a parallelogram, AP and CQ are perpendicular. आपको कुछ if you want to convey something ना let me know, है ना? If you find क्लास की पेस फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है, या सर मुश्किल क्वेश्चन ले ले सिर्फ, just let me know. Show that AP equals to CQ. ये तो बकवास लग रहा है क्वेश्चन. ओके, ABCD is a trapezium in which ये important क्वेश्चन है ना, पूरे चैप्टर का सबसे important क्वेश्चन है. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. You have to show that AD equals to, अच्छा ये given है हमें ना, and AD equals to BC. You have to show that diagonal AC equals to diagonal BD. ठीक है? तो ओरिजिनल क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है. I hope you will agree with me. है ना बेटा? Yes. Yes, sir. ये हमें गिवन है. अब यहाँ पर प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड है ना. इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट, यू कांट सॉल्व इट. एक्चुअली यू कांट सॉल्व इट. ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं स्ट्राइक होगा कि सम कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड. सो कंस्ट्रक्शन इन दिस इज यू एक्सटेंड AB. ठीक है, आप AB को एक्सटेंड करेंगे एंड देन फ्रॉम C कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AB. ठीक है, फ्रॉम C draw a line Parallel to AD. parallel to AD and meeting AB at point E. ठीक है, so ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है. अब सोचें how you can prove diagonal AC equals to diagonal PD. सर हो गया. Very good, wait for a minute. सर बस एक स्टेप करना है इसमें, फिर अपने आप हो जाएगा. अच्छा जी, I'll ask you.
सर बेटा एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन जरूर कर लेना आप लोग, है ना। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये पैरेललोग्राम है। नहीं, ट्रेपीजियम है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। नहीं सर, AECD। हाँ ये तो प्रूविंग का पार्ट रहेगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या हुआ, किसी और ने सॉल्व नहीं किया? रेज योर हैंड इफ यू हैव सॉल्व्ड इट, आई विल वेट। चलो जी शौर्य आप बताओ। सर सबसे सबसे पहले हम ये करेंगे, एंगल CEB is equal to angle CBA. क्यों इक्वल है? Sir, sorry, CBA नहीं, CBE. Sir, and that property, क्या प्रॉपर्टी? angles opposite equal, sides are equal because ये BC इक्वल का है, मैंने तो नहीं बोला ये नहीं। और ये इक्वल है, मैंने तो नहीं बोला। नहीं बोला आपने, वो मैं कंफ्यूज हो गया। Excuse me, sir. हाँ जी can I बेटा Excuse me, sir. बोलो। Sir, sir, it's given that AD is parallel to CE. So, sir, and sir also, Oh, yes, sir. sir, Sir, तो if फर्स्ट स्टेप, हाँ जी लेट मी टेक इट। तो फर्स्ट स्टेप इज ABCE इज पैरेललोग्राम, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है कि अपोजिट साइड ये वाली पैरेलल है और बाय कंस्ट्रक्शन दिस आर पैरेलल, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स पैरेललोग्राम। हाँ जी रियान आगे बोले। so AD and CE will be equal. Opposite sides are equal, therefore AD equals to CE and And AD sir, equals to BC. This sir, was so given. BC is equal to CE. हाँ जी, so therefore you are getting BC equals to CE. Okay, Sir, so isosceles बन गया sir. Then angle BEC and so let this angle is X, therefore this angle is also X, this angle is also X. also X. Okay, now And what? sir, then angle CBA and sir angle CBE का sum 180 degree होगा. एक मिनट। Then you are proving that angle ADC equals to angle CEB equals to angle EBC equals to X. हाँ जी, now. And sir, also angle DAB and CBA also equal. Okay, Sir, they this both angle are is 180 minus X, and ठीक that है, angle. from straight line, ठीक है, and this is this is co-interior adjacent angles, angles are supplementary. not adjacent angles, co-interior Sir, angles. parallelogram property. Adjacent angles Co-interior means angles are supplementary, so this is 180 minus X. So you'll say angle ABC equals to angle DAB equals to 180 minus X. sir अब congruency से हो जाएगा। Sir, अब आप angle इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। So these two triangles will be congruent. Sixth one, triangle BAD is congruent to triangle ABC by SAS. Seventh, you say that AC is equals to BD by CPCT. CPCD. yes. ठीक है जी, कॉपी कर ले। Yes. Excuse me. हाँ जी बेटा।
सर वो BC और C को हमने इक्वल कैसे प्रूव किया? किस किस को? BC एंड C। हाँ जी, ये देखो, ये तो हमें गिवन था कि जो हमारी BC है ये AD के इक्वल है ना, ये तो गिवन था। यस। अब ये हमने पहले प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, ओके सर, गॉट। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो इसीलिए ये भी इक्वल हो गया। एक और डाल देता हूँ मैं ग्रुप में ना। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट पोस्ट की थी ग्रुप पर क्वाड्रिलेटर्स की। हाँ जी क्लास, याद नहीं, ओके। Sir, can you please scroll up? Yes, sir. दिखाओ एक बार, ये भी डाल देते हैं। ओके, this is again an important question. ABCD is a parallelogram. Line segment EX and CY are angular bisector. You have to show that AXCY is a parallelogram. ठीक है, ये एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं। This is what is given. This is X, so this angle is also X. Opposite sides equal होती हैं, opposite angles, so this is X and this is also X. ठीक है, of course this is parallel to Yes, this. sir. ठीक है, अब आपको प्रूव करना है that this figure is a parallelogram. ये फिगर पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। Sir, तो angle BYC will also be X. BYC X क्यों हो जाएगा? Sir, अगर CY को ट्रांसवर्सल हाँ लेंगे। जी, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये एंगल X है, so this angle will also be X. Sir, DXA also. This angle will be also X. Excuse me, sir. बोलो। Sir, can we prove that AYCX is a parallelogram by making triangle ADX and BCY congruent? कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे बेटा? ये एंगल इसके इक्वल है, मान गए हम, ये इसके इक्वल है, ये भी हम मान गए, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है जी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या करोगे आप? ये साइड इसके इक्वल हो गई, चलो जी इक्वल हो गई, नाउ व्हाट?
ऐसी कोई थियरम नहीं है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है. नो, देयर इज नो सच थियरम. ठीक है, यू गाइस हैव ऑलमोस्ट डन इट. सिर्फ जो जितना रिक्वायर्ड था वो ये. सर मैं Opposite angles भी equal हाँ हो जी गए. बोलो बेटा आप. सर अब हम मतलब सर क्योंकि क्या कहते हैं सर ए एक्स ए वाई एक्स है और वाई सी और एक्स भी एक्स है तो जो हमारा सी है वो भी एक्स है तो हम ये भी ले सकते हैं दैट द एंगल सी वाई ए इज 180 माइनस एक्स और वो दोनों एंगल Yes, है. कॉम्प्लीमेंट्री तो वो भी opposite angles भी equal हो गए. बेटा वो लेने की जरूरत ही नहीं थी. ये आपका जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना. आप को इंटीरियर ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, बात खत्म. Yes. अंडरस्टूड. सी एक्स वाई और ए वाई सी तो को फर्स्ट इक्वल स्टेप. करके ओके, क्या कह रहे हैं बेटा आप? सर सी एक्स वाई और ए वाई सी को इक्वल करके ऑल्टरनेट इंटीरियर बना दो तो पैरेलल हो जाएगी. CXY एंड सर सी एक्स ए और ए वाई सी को इनको इक्वल कैसे प्रूव करोगे? सर वो तो equal ही 180 होगा. माइनस एक्स करके. यस सर. तो 180 माइनस एक्स नहीं ठीक है, दोनों इक्वल बट हो ये ज्यादा इजी और सिंपल है ना, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, है ना. सो फर्स्ट स्टेप इज यू विल से दैट CX इज पैरेलल टू AY. सेकंड स्टेप में आपको प्रूव करना है कि AX इज पैरेलल टू, है ना. सेकंड में आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है. ये प्रूव हो जाएगा तो बात बन जाएगी हमारी, है ना. इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल्स आर इक्वल. तो सेकंड स्टेप में वी विल से दैट let angle A equals to angle C equals to 2x. Okay, so therefore third step में you will say that angle XAY equals to angle XCY is equals to x. Fourth step में you will say that angle CYB equals to x. Why? Because of alternate interior angle. Fifth step में you say as angle XAY equals to angle CYB, therefore AX is parallel to CY, okay, or YC. Fifth में you will say that AYCX is parallelogram. Yes, sir. But आपका MVPP जो है it's going to get postponed again. Again? हाँ जी, ओमिक्रॉन फैल रहा है शहर में, कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको MVPP देना है. सर कैन इट गेट कैंसिल्ड? हो भी सकता है कैंसिल नहीं होता है यूजुअली ना. स्कॉलरशिप एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं, सो मे बी दे इट विल गेट पोस्टपोन बाय 1 month 2 months. सर तो ऐसा हो जाएगा क्या कि हम लोग MVPP 10th में देंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है. NTSC का ऐसे हुआ था, ठीक है, पोस्टपोन होके काफी डिले हो गया. NTSC स्टेज 2 जो है वो NTSC स्टेज 1 के 1 साल के बाद हुआ. यूजुअली 2 months के बाद होता है. स्टूडेंट्स जो है 11th जनवरी में NTSC स्टेज 2 दे रहे हैं, समझो आप. SST वो पूरी भूल चुके हैं, मैथ की प्रैक्टिस की नहीं है. वो जेई के वजह से. हाँ वो यूजलेस हो जाता है फिर. एनीवे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती ना. कोविड पता नहीं, अभी ओमिक्रॉन, अदर वेरिएंट्स आर गोइंग टू कम. मे बी दिस इज नाउ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग गोज ऑनलाइन. ABCD is quadrilateral in which PQRS are the midpoints. AC is the diagonal. You have to show that PQRS is a parallelogram.
ये बेकार क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये गिवन क्या है कि हमने मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन किया है, तो आपको प्रूव करना है कि जो फिगर फॉर्म हो रही है वो एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये डायगोनल है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। इफ यू आर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. So if this full length is x, this is x by 2, and this line is parallel to this line. By same reasoning, this line is half and parallel to this line, you know. So we can say that both these lines are equal to each other and half and parallel to each other. Thus, it is a parallelogram. ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ थोड़ा बहुत आप रिवाइज करके भी आएंगे बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग। ये क्वेश्चन ले लें, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इन एनी quadrilateral prove that the line joining the midpoint of opposite sides, bisect each other. ठीक है, आपको प्रूव करना है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। सोचें एंड देन रेज योर हैंड। सर इसके आई थिंक पहले डायगोनल्स बना लेंगे। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सर इसके डायगोनल्स बना रेज योर हैंड ऑल्सो, है ना। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो बोलो। सर 1 मिनट वो ऊपर वाला दिखा दीजिए। अभी नहीं, अभी बाद में, पहले ये। सर हाँ जी, सर ये जो मिड पॉइंट्स है सर, इनके भी नाम देके हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। नहीं, कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है यहाँ पर बेटा। देखो, दैट्स व्हाई मैथ्स इज सो इंटरेस्टिंग, है ना। ये आप इसका सॉल्यूशन सुनोगे तो फिर आप पक्की बात है अपना सर पीटने वाले हो। ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा, अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी फिगर बनती है? बताओ बताओ। सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अभी तो किया था हमने। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट कीजिए सर। बाइसेक्ट। बाइसेक्ट नहीं इधर, इसको हटा दो। सर हो गया। हो गया, समझ गए? तो ये 2 यस। स्टेप का क्वेश्चन हो गया। पहले आप प्रूव करें parallelogram will be formed, then you prove that diagonals bisect and thus they will bisect each other. ठीक है, देख लें किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें कुछ? नो सर। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं दी। So first step is prove that PMNO is parallelogram. Second step, diagonals of parallelogram bisect. That's it. Next one.
In a parallelogram, A, B, C, D, E, and F are the midpoints of the sides A, B, and C, D respectively. You have to show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. सर 1 मिनट बेटा, हाँ बोलो। सर ये स्कूल में कर रखा है, एग्जाम से पहले ही समझाया था सर ने। ओके गुड, ये आपको प्रूव करना है। Raise your hand if you have decoded how to do. हाँ जी आदित्य शर्मा बोलो आप। सर इसके अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज होगा। ओके बताओ किसमें यूज करें। सर इसमें हम लोग एफ क्योंकि मिड पॉइंट है, ट्रायंगल हम ट्रायंगल पहले लेंगे, डी क्यू सी के सी, हाँ तो जी उसके अंदर एफ मिड पॉइंट है, कन्वर्स एमपीटी से सर पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, so first step is you will prove that AE FC is parallelogram, है ना, ये first step होगा आपका। Second step is you will, because it's a parallelogram, you will say that AF is parallel to CE। ठीक है, अब आपने ये तो ले लिया बेटा कि AF and CE are parallel। ठीक है, थर्ड स्टेप you will take triangle DCQ। आप ट्राइंगल DCQ लेंगे, ट्राइंगल DCQ में you will say that FP is parallel to QC and F is midpoint, therefore by converse midpoint theorem, ठीक है, if you from the midpoint of one side a line drawn parallel to second side will bisect the third side, ठीक है, you will get dp is equals to pq। fourth you will take triangle, अब आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, this triangle, okay, so you will say in triangle ABP, ठीक है, similarly you will get PQ is parallel to QB, ठीक है, this is 1 और 4 and 5 तो ही हमारे पास points। Fifth is from 3 and 4 DB is getting trisected। Sir, can you explain this again? कौन सा पार्ट,
Sir, from part 3. 1 minute. बेटा ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ना, DQC, इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड जो है ये पैरेलल है और ये इक्वल है, ठीक है। जो मिड पॉइंट हमारी जो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है दैट इज कि इन अ ट्राइंगल इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, है ना, इस साइड के मिड पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू द सेकंड साइड, ये वाली साइड के पैरेलल में ये ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये हमारी जो थर्ड साइड है ये बाइसेक्ट हो जाएगी। Okay, Sir, sir. this is converse midpoint theorem. हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर आप किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को, है ना, ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, इफ यू विल जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट विल बी पैरेलल टू Parallel थर्ड to the साइड third side. एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है, कि मिड पॉइंट से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो मिड पॉइंट को तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। कन्वर्स क्या बोल रही है? कन्वर्स बोल रही है अगर आप किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, है ना, सेकंड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यू आर ड्रॉइंग दिस लाइंस पैरेलल, देन इट विल इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट द मिड पॉइंट, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी लाइन। ये कन्वर्स मिड पॉइंट है, ठीक है जी। Yes, sir. Understood. ओके, संडे का टेस्ट बेटा 2 आवर्स का रहेगा। Raise your hand once you have solved it. No one? Sir, may I try? Try नहीं, पहले एक बार वापस चेक करो। If you are sure, then raise your hand. Yes, sir, sure. हाँ जी, बताओ शाश्वत। Sir, for sir, ABCD is a parallelogram where it's given. Sir, so DC is equals to AB. Sir, and if we see, sir, DC is equals to BF also because Why? yes, sir, because sir, angle CDF, sir, is equals to angle DFB, sir, an alternate interior angle, sir. So same way, sir, if we join DB and CF, sir, then DBC ना ना, and DBCF को क्या ज्वाइन करना है? ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट, the vertically upward. Yes, sir, congruent. ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, Congruent. Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड। So if this is x, this is x, this is x, and then you are saying that AF is 2x to 2AB, है ना? फालतू क्वेश्चन था।
बट टाइम लगा आप लोगों को, देख लें एक बार। Sir, even I had the same one. ओके गुड, आगे बढ़े। Yes, sir. एक बार देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रायोरिटी देते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं हमारे। ये क्वेश्चन भी लेंगे। Excuse me, sir. ओके, हाँ जी बेटा। Sir, I had sent some doubts. Sir, can you please explain? एक बार फिर से भेजो ग्रुप पे, ग्रुप पे ही भेज दो ना, एवरीवन कैन सी। Okay, sir. AD and BE are medians of triangle this. Okay, CF is AC by 4. तो बेकार क्वेश्चन है, 1 मिनट, चलो कुछ नहीं कर सकते। गिवन क्या है, ये दोनों मीडियंस हैं बेटा, मीडियंस हैं, देन दैट मींस इफ दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y। ठीक है, हमने DF ड्रॉ किया है पैरेलल टू BE, ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। So you have to prove that CF is AC by 4. So to prove CF is AC by 4. सर अब बस हमें निकालना है कि EF is equal to FC। हाँ जी, है ना, और वो चीज तो इसमें है ही हमारे पास। यस, यहाँ पे तो चीख चीख के बता रही है वो चीज, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, कन्वर्स मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ है ना, फ्रॉम मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ वन साइड व्हेन यू आर ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू द सेकंड साइड, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ना, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, रेडी, किट कैट क्वेश्चन। ये एक ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया मैंने, ये इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, A B C and D, find AD upon DC। सर 1। Life is not that easy।
Hint. Shall I give a hint here? I Yes, think sir. a hint is Yes, sir. hint. This is M. This is a question, which you can ask your friends and scare them. Ding, 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 ding. This is your construction. Sir, if we duplicated and form like a parallelogram, it looks a lot like the question that we did earlier. Anji. Construction is draw MN parallel to BD. सर DN और NC इक्वल हो गए ना? Very good. Number 1 in triangle BDC. अगर हम ट्राइंगल BDC की बात करेंगे, ठीक है, you will say BM, you will say that Sir, AD और DN भी equal हो गए. DN equals to NC by converse midpoint theorem. सर देर 1/2 होना चाहिए. Sir, 1/3. 1/2 DC ratio पूछे ना, Yes. AD is to DC. Yes, sir. So in number 2 you will take which triangle? AMN. ठीक है, AMN में you will say that AD equals to DN by converse midpoint theorem, है ना? Yes, sir. So it is like from midpoint of one side, है ना? इस साइड के midpoint से हमने parallel draw किया है to the second side, then it will bisect the third side bisect हो जाएगी. So this is y, और यहाँ पर भी हमने यही किया था, ये भी y है. Y/2y. हाँ जी. Third Sir, 1/2. 1 and 2, AD upon DC is y/2y is 1/2. था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? टिंग 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 टिंग. श्रेयांशु, ये PDF की आपने ना, एक एक करके क्वेश्चन डालो बेटा, है ना? Sir, I have given them 1/2. Okay, just wait, है ना? Let me then load the PDF. 1 minute. तब तक आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करें. Solve this.
ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC intersects AC at D. You have to show that CM equals to MA equals to EB by 2. ये तो फालतू क्वेश्चन है। हाँ जी क्लास। ये एक्चुअली कुछ और ही क्वेश्चन था, ये कुछ और बन गया है। देखो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दें आप। You have to prove that CM equals to MA. सर M से पैरेलल लाइन बना दो। M जो मिड पॉइंट है तो AB by 2 के इक्वल क्या प्रूव करना है ना? This is what you have to prove. CM equals to MA. Anyone? सर M से CA के पैरेलल लाइन बना दो। M से CA के पैरेलल एक लाइन नहीं, मैं एक I'll tell you one interesting thing ना। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है? दैट इज अगर मैं ABC को सर्कमस्क्राइब करता हुआ अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ABC को सर्कमस्क्राइब करता हुआ अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, देन बिकॉज द कॉर्ड AB is subtending the angle 90 degree, therefore AB is what? Diameter. AB is Sir, M diameter. is center. M is center. अगर M सेंटर है तो CM क्या हो गया? Sir, radius. Sir, और MA radius. क्या है? Sir, radius. Sir, तो so they're equal हो equal. गए। सर इससे तो फिर ये भी निकल गया कि MA, अच्छा वो तो फिर हटा। ठीक है, बकवास क्वेश्चन था इसलिए छोड़ देते हैं। चलो जी, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है। PQR respectively are midpoint of triangle this, BR meet at this, CXR at Y. Prove that XY is half of BC, 1/4 of BC. Wow, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये ट्राई करें। Prove that XY is BC by 4. To prove, and here comes your proof. सोचें, ठीक है। To assist, if you want me to do something here, just let me know. I'll help you in that sense. Sir, do we have to join XY? ज्वाइन कर देते हैं, आप कह रहे हैं तो। सर X मिड पॉइंट है क्या RP का? RP का क्यों है, कैसे है? X और Y वन तो कुछ भी नहीं है, आप समझे नहीं बेटा। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे हटाऊं, ठीक है, दिस इज व्हाट द स्टोरी इज, ये हमारी स्टोरी है।
यहाँ तक क्लियर है? ट्राइंगल लिया, उसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है, फिर हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला मुझे, उसको x बोला मैंने, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उसको y बोला मैंने। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी लेंथ जो है वो इसकी लेंथ का 1/4 होगी। एग्रीड? Yes, sir. तो इंफॉर्मेशन और कुछ गिवन नहीं है हमें। Shall I? Sir, please wait for a minute. Okay. Step 1. BPQR. चेक करो भाई BPQR क्या खासियत है इसमें? Sir, it is a parallelogram. Very good. Midpoint theorem. This is parallel to this and equal to this. Sir, similarly, PCQ is. हाँ जी, 1 minute. Yes, sir. Therefore, RP and BQ. क्या बोलोगे भाई? Therefore, RP and BQ. Sir, they are Diagonals. नहीं, हाँ डायगोनल है तो वो क्या they करेंगे? bisect together. बाइसेक्ट, ठीक है। और x is midpoint of RP. Number 2, RQCP is a parallelogram, ठीक है। Therefore, y is midpoint of PQ. चेक कर लें यहां तक सभी। Number 3, triangle RQP. X and y are midpoints. Therefore, XY is half of RQ. ठीक है। Number 4, Yes, sir. triangle ABC. RQ is half of BC. Number 5, from 3 and 4, XY is 1/4 of BC.
ठीक है, कॉपी कर लें, अच्छा क्वेश्चन था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आप एक बार ये जो मतलब क्वेश्चन है इस पे मार्किंग हटा सकते हैं? मार्किंग हटानी है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Sir, when will you take my doubts? हाँ जी आपके डाउट, सॉरी। ABCD cyclic trapezium. Okay, cyclic trapezium. Whose sides AD and BC are parallel to each other? A, B, C, and D. Angle ABC is 75. Find measure of BCD. ये आपका फाइंड करना है, ठीक है बेटा। साइक्लिक है तो ये 75 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? Sir, it will be 130. 180 minus 180 minus 75. तो 105 डिग्री। सर वो भी फिर 75 ये पैरेलल है, हाँ जी। adjacent angles तो दिस 25. एंगल इज 75 है ना। राइट डाउन द स्टेटमेंट। साइक्लिक trapezium is always isosceles trapezium. Okay, sir. ABCDs are cyclic quadrilateral. Okay. ABCD is a cyclic quadrilateral. O is the point on the circle. O is the center of the circle. Angle COD. इधर डायगोनल्स बने हुए हैं यहाँ पर, so we have to draw our own figure. इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। ये सेंटर है हमारे पास, so this is your ABCD. Angle COD, this is 120 degrees. Angle BAC is 60 degrees. Find the value of BCD. ये एंगल आपको निकालना है बेटा। Sir, BDC will also be 60 degree. B, Sir, BDC.
BDC 60 की होगा सर अगर उस डायग्राम को बट उसको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। एंगल एट द सेंटर बाय अ कॉर्ड is 120. So angle at the remaining part will be Sir, half of it. half of it. तो 60 degrees है ना, और साइक्लिक है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके सर। ठीक है ना। PQRS is a rhombus, a straight line through R, cut PS produced at X and PQ at Y. If SX is 12 times of PQ, then the ratio of the length. पहले बना लेते हैं ना rhombus. PQRS, a straight line through R, cut PS PS produced at X and PQ produced at Y. PS को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और PQ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अ स्ट्रेट लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये इनको कट कर रही है। सॉरी, PS at X, PQ at Y. SX is equal to 12 times of PQ. ये तो उल्टा सा बना दिया मैंने, डोंट मैटर, डजंट मैटर। ये x है तो ये 12x है। Then the ratio of length of ये लिखा है ना। हाँ जी, अच्छा PQ, sorry. So this is x, this is x, this is x, this is x, and this is 12x. Then the ratio of the length QY to PQ. तो basically QY की लेंथ आपको निकालनी है correspondingly, ठीक है ना। ये तो बेटा 10th क्लास का लग रहा है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। रेडी फॉर इट? यस सर। ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा। एक मिनट, चलो ये एंगल हमारा A है, सो दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज A, यस। 1 minute. ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस A माइनस B। यस सर। ये एंगल कितना हो जाएगा B, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल, इनके एंगल्स हमारे सेम है, सो दिस ट्राइंगल्स विल बिकम व्हाट, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल SXR is similar to triangle QRY। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड्स SX अपॉन SR is equals to QR upon QY. Yes, sir. SX is given as 12x. SR is same as x. QR is x. QY you have to find, है ना। तो QY आपके पास कितना आ गया x by 12।
रेशियो किसकी पूछी है उसने? x by 12 by x. QY by PQ. तो दिस इज x by 12 into x. So ratio is 1 by 12. ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1:2 आप मान के चलें, क्योंकि ये 12 जो है वियर्ड फिगर है, तो दिस शुड हैव बीन एक्चुअली 1, ऐसे ये होना चाहिए 2p. ठीक है तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है. ये 9th का नहीं है, 10th का क्वेश्चन है ना. सिमिलर ट्रायंगल 10th में आएगा आपके. इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर. गिवन फिगर का है भाई? A line segment DX cuts the BC at X. ABCD. A line segment DX cut BC at X. ABCD. ये X पे कट कर रहा है. And the diagonal AC at O. This is your O, such that COD is 115 degrees. OXC is X degrees. You have to find value of X. This is hunting of angle. Let's hunt the angle. ठीक है जी. हाँ जी बताओ क्या किया जाए. ये एंगल कितना होगा? 45. दिस एंगल इज व्हाट? 45. तो ये एंगल बता दो कितना हो गया? 20 डिग्रीज. ठीक है. सो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, That will be 70 degree then. हाँ जी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो x is 70 डिग्रीज. Yes. Congratulations, आपका पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया. ठीक है, स्टिल प्रैक्टिस करें. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज एन एक्सीलेंट बुक टू प्रैक्टिस, है ना. सम मोर क्वेश्चंस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन रेफर आर.डी. शर्मा. इट्स एन एक्सीलेंट बुक. चलो जी, आप में से किसने सर्कल का टेस्ट दिया था? रेज योर हैंड. ओके, टेस्ट में बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिगर्स नहीं बनाई है. आप फिगर नहीं बनाएंगे, घंटा एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना, एंड यू विल लूज मार्क्स. तो ये ध्यान रखें. आई एम नॉट गिविंग मार्क्स अगर आपका क्वेश्चन सही है बट आपने फिगर नहीं बनाई है. आई विल नॉट गिव मार्क्स. यू आर सेइंग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. वेयर आर दोज एंगल 1 and 3? फिगर बनी नहीं है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. सो प्लीज डू मेक द फिगर in each paper, each test. ठीक है जी. चलो, I enjoyed today's session. I actually enjoyed teaching it. Looking forward for Wednesday class. चलो, let's end the session now. Sir, हाँ जी बोलो बेटा. Sir, I wanted to ask that I only made figures for the questions. It was not given. So is that okay? Whether figure is given in the question or not, you have to draw figure for all the questions. If you are making reference, है ना. अगर पेपर में क्वेश्चन में फिगर गिवन है तो आपको भी फिगर ड्रॉ करनी है. अगर वो 1 मार्क का है देन नॉट रिक्वायर्ड. 1 मार्क में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. नो फिगर, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग इज रिक्वायर्ड. 2 मार्क्स और एनीथिंग यू हैव टू ड्रॉ फिगर. ठीक है, चलो. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे शियांशु? सर शाश्वत. हाँ शाश्वत बोलो. सर वो साइंस के डाउट पूछने थे. आप ग्रुप पर पोस्ट करो, है ना. एक्सीलेंट स्टूडेंट्स आर देयर हु आर टीचर्स आल्सो, है ना. आई इनफैक्ट गिव चांस टू ईच वन ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड एंड टीच. ठीक है, एज एन एक्सपीरियंस. सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू टीच, विल कीप अ सेशन, है ना, वेयर ईच वन ऑफ यू विल टीच 15 minutes फ्रॉम योर ओन टॉपिक्स एंड दैट सेशन टर्न्स आउट एक्सीलेंट. चलो जी, अभी लेट्स एंड द सेशन. आप मेरे को आप ग्रुप पर डाउट पोस्ट करें, है ना. अदर्स विल डेफिनेटली आंसर और अदरवाइज आई विल आंसर. ओके सर, थैंक यू सर. बाय सर. ओके, बाय बाय.
Thank you, sir. Bye, sir. Welcome. Bye bye.